A very healthy morning, all of you. And first of all, congratulations, all the students, to promote. You all are promoted to the 6th class. On the behalf of Oscar Public School, I welcome you all to online classes. My name is Nimisha. I am appointed to be your social science teacher. I hope you all are fit and fine at your homes. I am so excited to meet you all on school opening. We are just going to have a fabulous school year full of fun and learning. But right now we are just going to start our study through online classes as it is not allowed to go to school due to corona pandemic. Well, we are just going to learn so many things and exciting things together. I welcome you all again and let us start today's class. So students, before I am going to start class, I just want to tell you, beta, you have to make a 2 notebooks of social science because social science has a 3 parts: history, geography and civics. Got it? But you have to make a 2 notebook, one of history and civics. You have to make that a रजिस्टर ऑफ दैट. आपको एक रजिस्टर बनाना है, 2 line रजिस्टर. दैट इज हिंदी रजिस्टर यू हैव टू मेक फॉर सोशल साइंस. इन दैट यू कैन डू हिस्ट्री एंड सिविक्स वर्क. ओके. And for the geography you have to make a notebook of practical notebook जिसमें one side blank हो and one side 2 lines हो. Got it बच्चे? That's why I'm just speaking in Hindi also. You have to understand it properly and nobody will use any other pen. You can only use a two type of pen and 2 color of pen. The first one is question you have to write with the black pen and the answers you have to write with the blue pen, either be gel or either be ball. But I'm just preferably मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप बॉल पेन यूज़ कीजिए. Got it? So बेटा, this is your content and this is the front page of your book. So as soon as possible बेटा आप बुक परचेज कीजिए. Okay? We have to provide a book on the school in the school area only. ठीक है. And the next thing, बेटा pay your fees on the monthly basis. It is very very important and watch this video full. It is very helpful for you. And the other thing, do your work on time. पेंडिंग वर्क आपने नहीं छोड़ना है, सारा काम टाइम पे करना है. सो बच्चे, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, एन इंट्रोडक्शन टू द पास्ट. What is the name of this chapter? An introduction to the past. So basically beta, in this chapter I'll just start with the some important thing. Beta, when your children ask thousands of questions to the parents as to why, how, where, etc. आपने देखा होगा बच्चे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं पेरेंट्स से, मम्मा या पापा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ. सो इन देयर क्वेश्चन टू नो, हैव यू एवर सेट डाउन विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हेयर दैम नरेटेड स्टोरी लाइक व्हेन वी वर यंग वी डिड दिस. देखा है ना आपने, आपके दादाजी के साथ आप बैठते हो तो पुरानी स्टोरी सुनाते हैं कि जब हम यंग थे वी हैव टू डू दिस, हमने ये किया, थिंग्स वर लाइक दिस, ये चीज़ें ऐसे होती थी. यानी अभी आप सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इन द प्रीवियस टाइम बहुत फ़ोन्स ही अवेलेबल नहीं थे, लेटर्स लिखे जाते थे, सो ऑन. सो बेटा, सो ऑन, थिंग्स ऑल अराउंड यू आर चेंजिंग एट अ रैपिड प्लेस. Human society has developed over a period of time to what it is today. It is natural tendency of human being to explore how the world and the human society has grown from times immemorial. All the knowledge is the respect has been recorded by a people and passed on the books of history. तो एक वर्ड हमारे सामने निकल आया, that is history. So what is that history? ये history क्या है?
So beta, these are the very long paragraph. I am just explaining you in a short and simple lines. So listen it very carefully. So history is the study of events. Repeat after me. History is the study of event that happen in the past in the sequence of occurrence. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ इवेंट्स है, यानी कि पुराने सालों में पहले क्या हुआ, आज से 1000 ईयर्स अगो, 500 ईयर्स अगो क्या चीज़ें हुई हैं और किस सीक्वेंस से हुई हैं, कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ. सो दिस इज़ द स्टडी ऑफ events that happen in the past in the sequence of occurrence. It tells us about how early humans lived. आप पढ़ते हैं ना बुक्स में कि पहले हम लोग, आज इतनी हम डेवलप्ड रहते हैं, अभी हम ऐसे नहीं, अभी पूरा इन अ प्रीवियस टाइम हम ऐसे नहीं थे. We all are how early men's, early human beings and प्रोग्रेस्ड ओवर 1000 ऑफ ईयर्स. बेटा जैसे आज हम प्रोग्रेस्ड हैं, हम पूरी तरीके से डेवलप्ड है. वी हैव टू नो कि हाउ टू वर्क, हाउ टू कुक, हाउ टू एग्रीकल्चर, ईच एंड एवरीथिंग वी नोज. बट इन 1000 ऑफ ईयर्स अगो वी डोंट नो एनीथिंग. हाउ टू कुक फूड, क्या खाने को पका कर भी खाते हैं कि कच्चा ही खा जाते हैं, वी डोंट नो एनीथिंग. So, history also studies how our past affect the way we live now. So basically बेटा हिस्ट्री आपको आपके पास्ट इवेंट्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पीपल्स के बारे में, प्रॉब्लम एंड इश्यूज़ के बारे में बताती है. ठीक है. हिस्ट्री कैन बी लुक्ड एट द एस्टाउंडिंग स्टोरी नरेटिव फील्ड, यानी प्रीवियस टाइम में, आज से हज़ारों साल पहले क्या स्टोरीज़ थी, कैसे लोग रहते थे, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स आती थी, किस तरीके से वो अपने डे बाय डे रूटीन उनका चलता था. ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू जस्ट स्टडी इन हिस्ट्री. इसी हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउ टुडे इज़ अ कोरोना पैंडमिक. आज ही कोरोना पैंडमिक चल रहा है, लोगों ने कैसे लॉकडाउन में सर्वाइव किया, ये सब चीज़ें. बट अब आने वाले 1000 ईयर्स बाद ये चीज़ हिस्ट्री बन जाएगी कि ऐसे 2020 में, यानी 2020 में एक ऐसा पैंडमिक आया जिसने कि पूरे कंट्री, क्या पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से लॉकडाउन लगा दिया. बहुत सारे लोग डेड हुए, बहुत सारे लोग सर्वाइव भी करे. हाँ, और हम लोग भी तो सर्वाइव कर रहे हैं. सो आज से आने वाले 500 ईयर्स में और 1000 ईयर्स में ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट होगा कि 2020 में इस तरीके की पेंडेमिक आई थी. बेटा आई एम जस्ट टॉट यू इन अ बायलिंगुअल लैंग्वेज. मैं आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आप इस कंटेंट को अच्छे से समझ पाओ. बट यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम, सो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड्स. ओके. सो बेटा वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. अब हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ना है हमें हिस्ट्री. सो बेटा हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट अस to understand how human beings have evolved over a period of time. So first one, history tells us about different type of culture and civilization that existed. यानी कि पिछले आज से हज़ारों साल पहले क्या कल्चर था, किस तरीके से लेडीज़ जेंट्स ऑर्नामेंट्स पहनते थे, रहते थे, बाल लॉन्ग हेयर होते थे, कैसा फेस्टिवल्स होते थे. सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता. जैसे आपने सुना होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में. So civilization. So the things it tell us about discoveries and invention took place. कैसे आपने देखा होगा कैसे फायर डिस्कवर्ड हुई, कैसे फायर इन्वेंट हुई. आज आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कैसे इन्वेंट हुआ, क्या डिस्कवरी थी इसकी, किस तरीके से अर्ली ह्यूमन ने व्हील को इन्वेंट किया कि व्हील कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है. फायर को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया कि किस तरीके से फायर यूटिलाइज हो सकती है हमारे. सो यही सब जानने के लिए हमें हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है. ड्यू टू इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री इट टच अस
आर डिस्क्रिमिनेंट। बेटा हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, किस तरीके की सिचुएशंस रही होंगी, कैसे ह्यूमन ने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप्ड करना सीखा, हाउ ह्यूमन बीइंग हैज़ बीन एग्रीकल्चर कैसे करना स्टार्ट किया, किस तरीके से उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग आर द पार्ट ऑफ हिस्ट्री. It inspires us to think bigger, to have a purpose and it gives us a desire to different. यानी कि ये हमें बताती है कि how the human being have progressed in his life. Studying history is important as to know our past, which is turns allow the different allows to the understand our present. It took a history for answers. Why our world is the way is today, we have to took history of answers. So beta, these are the things history help us to learn from the mistake of past and allow us to take a better decision. हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि जो गलतियाँ हमसे पिछले समय हुई, यानी कि हिस्ट्री में जो गलतियाँ हुई वो हम उसे दोबारा ना दोहराएं. लाइक जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में. सो जिसी तरीके से जितना डिस्ट्रक्शन हुआ, अब उस तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए. गॉट इट बच्चे? नाउ पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. बेटा हमने हिस्ट्री को पीरियडाइजेशन किया हुआ है, अलग तरीके पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. It was difficult to put all the past events of history. It's a chronological sequence. Therefore, in the order to make sense of past to articulate change over time, history divided into different periods. So beta, this is mainly divided into three categories: ancient history, medieval history and modern history. Repeat after me: ancient history, मिडीवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. यहाँ पर हमने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में: एशियंट हिस्ट्री, medieval history and modern history. As we are studying about early humans as their evolution and the time, this category would become under the ancient history. तो बेटा ancient history में क्या पढ़ेंगे? ancient में सबसे पुरानी history. In this history we have to study about अर्ली ह्यूमन्स के बारे में, हाउ दे एवोल्यूशन देयर ओवर टाइम, उस सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ पता चलता है? एशियंट हिस्ट्री में. बेटा दिस फ्लो चार्ट यू हैव टू मेड इन योर नोटबुक. दिस इज़ योर होमवर्क. एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये आपने बनाना है, ठीक है, आपकी नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. ठीक है. हिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स: एशियंट, मिडीवल, मॉडर्न. एंड एशियंट हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एशियन हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. और उसी तरीके से प्री हिस्ट्री के भी 3 थिंग्स हैं: स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज. तो बेटा आपको यहाँ पे प्री हिस्ट्री के मैंने 3 पार्ट्स डिवाइड किए हैं, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. बेटा दिस इज़ द फ्लो चार्ट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. किस तरीके से हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन किया गया है, यानी कि उसको डिवाइड किया गया है. ठीक है बेटा. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री? 3 पार्ट्स: एशियंट, मिडीवल, मॉडर्न. एशियन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री. एंड प्री हिस्ट्री ऑल्सो हैव 3 पार्ट्स: स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज. So beta, one by one we have to read about this. First of all, prehistory. Beta, in this prehistory we are just going to study in this period. Beta, man did not lead a settled life. इस period में men's की settled life नहीं थी. They are wandered from one place to another place. यानी कि इन लोगों की कोई भी settled life नहीं थी. अभी हम पढ़ रहे हैं एशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, यानी कि प्री हिस्ट्री. So in prehistory, man did not know how to settle life. They are wandered from one place to place.
देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दैट टाइम, हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है क्योंकि उस समय पर लैंग्वेज इन्वेंट ही नहीं हुई थी. सो बेसिकली हमें प्री हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है? आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू. ठीक है, किसके थ्रू पता चलता है? आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू. सो बेसिकली बेटा व्हाट इज़ आर्कोलॉजी? आर्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट. यानी कि बेसिकली आर्कोलॉजी क्या है? आर्कोलॉजी हमारी एक स्टडी है जिससे कि हम पास्ट के इवेंट्स के बारे में जान पाते हैं बाय द डिगिंग अप, यानी कि खुदाई के थ्रू, यानी कि ग्राउंड की खुदाई के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं. Historians drew conclusion with the help of available physical remains like bones, tools, weapons, coins, pot, jewelry. ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या करा, किसके थ्रू पता चलता है? यानी अगर डिगिंग अप, ग्राउंड को डिगिंग किया जाता है, खुदाई की जाती है, उस खुदाई में हमें बोन्स मिलती हैं, टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, ठीक है, कॉइन्स मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, जिसकी स्टडी के थ्रू हम बताते हैं कि ये कितनी पुरानी है और कैसे लोग रहा करते होंगे. एंड प्री हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने आपको बताया 3 एजेस में डिवाइड है, स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज. लाइक स्टोन एज में स्टोन से वो काम करते होंगे, एज अ टूल स्टोन का यूज़ करते थे. ब्रॉन्ज एज में उन्होंने ब्रॉन्ज को यूज़ करना शुरू किया और आयरन एज में वो आयरन यूज़ करते थे. ठीक है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करके नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. द सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री. सो बेटा इन दिस प्रोटो हिस्ट्री देयर इज फ्यू और सम रिकॉर्ड्स. ठीक है, सम रिकॉर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया. कुछ हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिली हैं जैसा कि, और इन दिस टाइम यानी प्रोटो हिस्ट्री में पीपल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सेरियल्स. यानी अभी तक वो कच्चा मीट कैसे खा रहे थे, आई डोंट नो कैसे खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे, बट नाउ इन दिस उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया. यानी कि अब उन्होंने अपने खाने के लिए सेरियल्स, अनाज उगाने शुरू करे. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस हिस्ट्री. और इसका एग्जाम्पल हमें कौन सा मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन. Indus Valley civilization. Now the third one is history. History started after the invention of writing. Basically बेटा हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है? जहाँ ह्यूमन बीइंग ने राइटिंग का इन्वेंशन कर लिया था और हमें रिटन रिकॉर्ड्स भी मिलने शुरू हुए थे. और वो रिटन रिकॉर्ड्स हमें कहाँ मिले थे? रॉक्स पे, पिलर्स पे, कॉपर प्लेट्स पे, क्ले टैबलेट्स पे, पाम लीव्स पे. दीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं. ठीक है बच्चे, दिस इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बेसिकली बेटा क्ले यानी आप देखते हो क्ले पर कुछ ऐसे पंचिंग मार्क बताते हो तो निशान बन जाते हैं. रॉक पे लिखा जाता था, पिलर्स पे लिखा जाता था. ठीक है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स है इंफॉर्मेशन को लेने के लिए. सो बेटा आई एम जस्ट रेस्टिंग योर क्लास हेयर ओनली. सो दिस इज़ योर होमवर्क. दिस फ्लो चार्ट you have to make in your notebook, and beta just leave the one page for a syllabus. So syllabus I will tell you in the next week. Next week means नेक्स्ट क्लासेस में आपकी सिलेबस आपको मिल जाएगा. सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट एंड डू योर वर्क. कीप सेफ and stay safe and stay blessed also. Thank you so much all of you.